دو دلوں کی داستان سیزن 2 ایپیسوڈ 55۔ ارمان واپس آیا تو جو کچھ سننے کو ملا تھا وہ سب دل دہلا دینے والا تھا۔ فبیہہ کا تو اسے پتہ تھا، لیکن ولی نے جو معصومہ کے ساتھ کیا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ اسے شجیہ کا خیال آیا تو دل مزید بھاری ہو گیا۔ ماما، شجیہ نے سب کیسے فیس کیا ہوگا؟ وہ اس وقت صفا کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ آج آئے ہو میری جان، ٹینشن نہ لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ریسٹ کرو تم، اور ٹائم نکال کر اس معصوم سے مل آنا، صفا نے بیٹے کا سر چومتے کہا۔ جی ماما، ان سے ملنا تو اب اشد ضروری ہو گیا ہے۔ نہ جانے اس ننھی سی جان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں بھی کب سے ان سے رابطہ نہیں کر پایا تھا، لیکن آج ان سے ضرور ملوں گا، وہ ماں کا ہاتھ چومتے بولا۔ منال کا دل بالکل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس کا دریافت ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ جب اسے پوری کی پوری منال میسر تھی تو کیوں دریافت ارا کی طرف مائل ہونے لگا؟ اس کی آنکھیں جھوٹ نہیں بول سکتی تھیں۔ جو چمک اس کی آنکھوں میں منال کو دیکھ کر آتی تھی، وہ چمک کبھی ارا کو تو کیا کسی کو بھی دیکھ کر نہیں آتی تھی۔ تو کیسے ممکن تھا کہ دریافت ایسا غلط قدم اٹھاتا؟ یہ سوچیں اس کا دماغ مفلوج کر چکی تھی، لیکن اس کا دل ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ دریافت کسی کی عزت کا لٹیرا ہو سکتا تھا۔ زارون کمرے میں آیا تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑی یہ سب سوچ رہی تھی۔ من اور لمس کی لاڈلی بیٹی، زارون راجپوت کی اکلوتی جان سے پیاری بہن، اس وقت جس کرب سے گزر رہی تھی اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ نازک پلی بڑھی تھی، وہ دریافت راجپوت کی دیوانی جس کی موت اسے آدھا مار گئی تھی اور آدھا اس کی سچائی جان کر مکمل مرنے کے قریب پہنچ گئی تھی، جبکہ دل کی دغا بازی بھی کوئی اچھی علامت نہ تھی۔ میری گڑیا کیا سوچ رہی ہے؟ زارون نے بہن کو حصار میں لیا تو وہ چونکی۔ آپ کب آئے بھائی؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، وہ بھائی کے سینے پر سر رکھتے بولی۔ جب میری گڑیا نہ جانے کون سا راکٹ بنانے کا سوچ رہی تھی۔ وہ ہلکا سا ہنسی، لیکن زارون کو گہرا دکھ دے گئی تھی۔ میں اپنی زندگی خطرناک راکٹ بن چکی ہے بھائی، پتہ نہیں اور کیا کیا سہنا باقی ہے۔ میں تو اتنے سے ہی تھک گئی۔ محبت کرنے والوں کے امتحان اتنے سخت کیوں ہوتے ہیں بھائی؟ وہ رنجیدگی سے بولتی۔ زارون کا دل دکھا گئی۔ جو آسانی سے مل جائے وہ محبت ہی کیسی منال؟ محبت پانے کے لیے امتحانوں سے گزرنا شرط ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا، امتحانوں کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اپنے بندے پر اس کی شکر سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ محبت تھی یا وقتی کشش، ان امتحانوں سے گزرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ آپ اپنے محبوب کو بھول جاتے ہو یا اسے یاد رکھتے ہو، آپ پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر کسی کے کہنے پر محبوب کی یاد آئے تو سمجھ جاؤ وہ وقتی تھا، جو بھی تھا، لیکن بنا کسی کے کہے ہر وقت جو یادوں میں رہے، دل میں رہے، وہ محبت ہوتی ہے۔ ذریعہ نے جو کیا اس پر یقین کرنا مشکل ہے، لیکن مہابیر انکل بھی جھوٹ نہیں بول رہے۔ بعض اوقات جیسا نظر آتا ہے ویسا کچھ نہیں ہوتا، اور جو اصل ہوتا ہے وہ چھپا ہوتا ہے جسے خود ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ وہ آرام سے بہن کا سر سہلاتے اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ آخری بات سن کر منال نے ناسمجھی سے بھائی کو دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا بھائی کہ جو نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں؟ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ذریعہ نے جو کیا اصل میں ویسا کچھ نہیں تھا؟ بالکل،
दिमाग को जंग लग गया था। जो सोचा नहीं इस बारे में। मेरी गुड़िया इतनी निकम्मी कब से हो गई। महावीर अंकल तुम्हें शार्प शूटर और शार्प माइंडेड लड़की कहते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगती तुम कहीं से भी शार्प माइंडेड। कहता हूँ महावीर अंकल से इस निकम्मी को किसी काम लाएं। कोई 2-3 बंदे टिपकवाएं इससे, ताकि जहन काम करे इसका। वो मुंह बनाते बोला तो वो सीधी होते उसके रूबरू आई। मुझे सच सुनना है भाई, पर ऐसी बातें घर में नहीं करते। महावीर अंकल ने ये भी बताया था। हम सब यंग पार्टी क्या क्या गुल खिला रही हैं, बड़ों को कुछ नहीं पता, यहाँ तक कि मरवा आने को भी नहीं। तो ये सीक्रेट बात घर में नहीं करनी आपने आइंदा। वो रोब से बोली तो ज़ारून ने मुस्कुराते हुए बहन को देखा। सच मैं नहीं सुनाऊंगा, महावीर अंकल सुनाएंगे और दिखाएंगे भी। महावीर वो सीक्रेट ही रखना चाहता था, लेकिन मायरा ने सब सुन और देख लिया था, इसलिए सारी गैंग को बता दिया था। लेकिन मीनाल बेखबर थी, तो महावीर ने ये काम ज़ारून को दिया था कि वो मीनाल को फार्म हाउस ले आए, जहाँ राइम और इरहा पहले से ही मौजूद थे। वो लोग वहाँ पहुँचे तो सबको पहले वहाँ देखकर वो हैरान हुए। ज़ारून भाई, ये सब लोग यहाँ क्यों? मीनाल को हैरत हुई थी। महावीर अंकल ने सबको बुलाया है, इसीलिए यहाँ मौजूद हैं। तुम्हें लाने की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी थी। कुछ ही देर बाद MK और ईगल वहाँ आते दिखाई दी। मायरा को एक सख्त गोली से नवाजते ईगल MK के पीछे गया। मुझे क्यों घूर रहे हैं ईगल भैया? वो ईगल के पीछे आते उसका बाजू पकड़ते बोली, तुमने जो कांड किया है ना, उसका हिसाब पूरा लूँगा तुमसे। और आज देखो तुम्हारे शामिर को मैं तुम्हारे करतूत सबूतों समेत दिखाऊंगा। वो धमकी देते बोला तो वो घबराती उसके सामने आई। आप तो मेरे बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, बहुत क्यूट, बहुत हैंडसम से ईगल भैया हैं ना। प्लीज़ इन्हें कुछ मत बताइएगा, वरना उन्होंने मेरी गिच्ची मरोड़ देनी है। वो तो हंसी होते बोली, बहुत अच्छा होगा तुम्हारे साथ, बहुत अच्छा होगा तुम्हारे साथ। ईगल भी दांत पीसते बोला तो वो बस ईगल के कदमों में गिरने के करीब थी। एक बात याद रखिएगा, आपकी बेटी को मैं अपनी बहू बनाऊंगी, और अगर बेटा हुआ तो उसे अपना दामाद बनाऊंगी। वो पक्का जन मुरीद होगा मेरी बेटी का, और आपकी बेटी जो मेरी बहू बनेगी वो दिन रात मेरा टॉर्चर सहेगी। अब सोच लें, अब भी शाहमीर को बताएंगे। वाह, कितनी प्यारी धमकी दी थी। मतलब कितना मान था ना उसे अपने ईगल भैया पर कि वो अपनी बेटी हुई या बेटा, वो मायरा के बच्चों से ही मंसूब होंगे। और ईगल को ये रिश्ते दिलो जान से कबूल थे, लेकिन फ़िलहाल वो ऐसा बताकर सामने वाले को सर पर नहीं चढ़ाना चाहता था। वैसे मैं हैरान हूँ मायरा, वो बंदा हमारी टीम का यूँ समझो ऑलराउंडर है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि तुम लाशों के साथ क्या क्या करती हो। ऐसा क्यों? वो मुतजस्सिस लहजे में बोला, बड़े पापा जिंदाबाद। उन्होंने आज तक उन्हें भनक भी नहीं पड़ने दी, लेकिन आप सुन लें, अगर आपने उन्हें कुछ भी बताया तो मैं आपसे बहुत पक्की वाली नाराज़ हो जाऊंगी। मैं उंगली उठाते उससे बोलती वहाँ से चली गई, तो वो भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे चल दिया, जहाँ सब लोग मुंह खोले MK को देख रहे थे। यकीनन सीक्रेट रिवील हो चुका था। ज़रा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ़ कर दूं तो मुझे सच बताएं, क्यों छुपाया आपने वो सब हमसे? वो दोनों डिनर करके कमरे में आ गए थे, लेकिन जरार ने अभी तक उसको कुछ भी नहीं बताया था। वो भी शावर लेकर निकला था। मित्रारा, मेरा यकीन करें, सब बताऊंगा आपको, लेकिन वक्त आने पर। आप क्यों मेरा यकीन नहीं कर रही? क्योंकि मेरा यकीन पर से ही यकीन उठ गया है मिस्टर जरार। मुझे ये लफ्ज़ ही अब बेमायनी लगता है। वो उससे मुंह मोड़ते बोली, तो क्या जो मैं बताऊंगा उस पर भी यकीन नहीं करेंगी? वो जानना चाहता था। आपके बताए पर डिपेंड करता है। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी कई बात पर यकीन कर सकूं। ठीक है, तो फिर सुबह आपको बता दूंगा अपना सच। मैं चाहता हूँ कि बाकी घर वालों को भी मालूम हो जाए। सुबह तक तो इंतज़ार कर सकती हैं ना आप? वो टॉवल गले से निकालते बोला, तो वो भी सर हिलाती, हाँ में हिलाती मान गई। जबकि जरार को टेंशन हो रही थी बाकी सबके रद्द अमल जानकर।
لیکن सब अल्लाह पे छोड़ते वो थोड़ा ही सही मुतमईन हो गया था। ये क्या बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है। एमके को जब माफी मीटिंग का पता चला तो वो फौरन ज़ारून से मिले थे। यही सच है ज़ारून, इन खबीसों का मकसद यही है और इस बार उनका टारगेट तुम्हारा कॉलेज ही है। मौजूदा माफिया किंग डेसूज़ा को 20 लड़कियों की ज़रूरत है। वो लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसका पहला इस्तेमाल वो यंग गर्ल्स पर करना चाहता है। क्योंकि तुम्हारा कॉलेज शहर का सबसे बड़ा और मशहूर कॉलेज है, तो उनका हदफ वही है। दूसरा, चौधरी कासिम को शक है कि इरा को हमने ही कहीं गायब करवाया है, तो वो जानबूझकर डेसूज़ा को तुम्हारे हॉस्पिटल का बता गया ताकि राजपूतों की इज्जत लुट जाए। क्योंकि इरा को लेकर उसे शक है, कोई ठोस सबूत नहीं है, तो इसलिए वो अभी तक चुप है, वरना कुत्ते की तरह झपट पड़ता। आप सबको एहतियात करनी होगी। वो राज तो सबको बताना था। वो बताने के बाद अब वो लोग ये केस डिस्कस कर रहे थे। बड़े पापा, वो लोग क्या प्लान बना रहे हैं और कब ये हमला होगा, इस बारे में कैसे पता चलेगा हमें। टाइम की बात पर एमके ने सरसरी मायरा की तरफ देखा। जाहिर सी बात है, इनके बीच जाना पड़ेगा ये मालूम करने के लिए। बाबा, कौन जाएगा वहाँ? आपके माइंड में क्या है? मिकाल ने एमके का मायरे की तरफ देखना नोट कर लिया था। अभी डिसाइड नहीं हुआ मिकाल, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। ज़रनब, मेरे साथ आना बच्चे, कुछ बात करनी है, मिकाल को जवाब देते एमके ने ज़रनब को कहा और ख़ुद अपने ऑफिस रूम में चला गया। जबकि ज़रनब का यूँ बुलाना मिकाल को थोड़ा डिस्टर्ब कर गया था। वो एमके के रूम में गई, जहाँ वो लैपटॉप खोले कोई नक्शा देख रहा था। जी अंकल, बताइए क्या बात है? वो अंदर आते बोली तो एमके ने मुस्कुराते हुए अपने बाजू खोले, जिनमें वो मुस्कुराती हुई जा समाई। मेरा बहादुर बेटा, वो उसका माथा चूमते बोले। मिकाल ने जेलस हो जाना है अंकल, आपका इतना लाड देखकर मेरे साथ, वो शरारत से बोली। तो होता रहे, मैं डरता थोड़ी ना हूँ उससे, बाप हूँ उसका, मुझे कुछ नहीं कह सकता वो, एमके ने लापरवाही से कहा। वो तो है, आपको पता है जब आपने मुझे बुलाया तो वो डिस्टर्ब हो गए थे। क्या वाकई कोई ऐसी बात है अंकल? वो आपकी बात संजीदगी से बोली। ज़रनब बच्चे, मुझे डेसूज़ा का प्लान जानना है और उसके लिए हम में से किसी को उसकी गैंग में जाना होगा और मैं चाहता हूँ तुम वहाँ जाओ, लेकिन ये सीक्रेट रहेगा हम दोनों के बीच। सबको लगता है कि मैं मायरा को वहाँ भेजूँगा, लेकिन तुम जाओगी वहाँ। तुम्हें वहाँ कोई ख़तरा नहीं होगा क्योंकि मेरे वफ़ादार तुम्हारे साथ तुम्हारी हिफाजत के लिए मौजूद होंगे। तुम्हें याद है, तुमने बताया था कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। जी अंकल, उसका इन सब से क्या ताल्लुक़? वो उलझन से बोली। मैं कुछ बातें हैं जो तुम्हें बताना चाहता हूँ, फ़िलहाल किसी और से नहीं कह सकता। जिन लोगों ने ज़रियाब का मर्डर करवाया वही लोग थे जो तुम्हारे पीछे थे। अब उनका टारगेट तुम होगी। वो ज़ाहिर के और मेरे दुश्मन हैं। तुम्हें वहाँ भेजने का एक मकसद ये भी है मेरा कि तुम कुछ दिन उनकी नज़रों से ओझल रहो, तब तक उनके ठिकाने का भी मालूम हो जाएगा। बॉस नाम है हमारे दुश्मन का और दूसरा जो है उसका नाम पार्टनर से मशहूर है। ये लागर वजूद जो यहाँ मौजूद है वो भी बॉस के अड्डे से मिला मुझे। चौधरी रहमत माफिया किंग के साथ मिला हुआ है। ये बात बॉस और पार्टनर नहीं जानते। इनका अपना अलग धंधा है। साफ लफ्ज़ों में माफिया से इनका कोई ताल्लुक़ सामने नहीं आया। वो जो भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं अपने बलबूते पर कर रहे हैं। एमके ने तफसील से समझाया तो वो समझती सर हिला गई। बाकी सबको क्या कहेंगे कि मुझे कहाँ भेज रहे हैं आप? वो अब मुद्दे पर आई। तुम्हारा कॉलेज का ट्रिप अरेंज करवाता हूँ, कम से कम 2 हफ्तों का। अंकल, मैं इनके बीच जाऊँगी कैसे? वो मेरा काम है वहाँ घुसना, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस हिम्मत नहीं हारनी मेरी बेटी ने। सब यही कहते रहे कि ज़रनब मासूम सी लड़की है, शाय है, लेकिन कोई भी मेरी ब्लैक बेल्ट फाइटर बेटी के बारे में नहीं जानता। एमके ने उसका माथा चूमा तो वो मुस्कुरा दी। बाकी सबको छोड़कर बस आपके बेटे से डर लगता है मुझे। वो मुंह बनाते बोली तो एमके हंस दिया। इतना डरावना भी नहीं है वो। डरावने नहीं हैं, ख़तरनाक हैं।
توبہ توبہ ایسے گھورتے ہیں نا کہ جان حلق میں آ جاتی ہے۔ وہ جھرجھری لیتے بولی، گھورتا نہیں ہے، پیار سے دیکھتا ہے وہ پاگل لڑکی۔ ایب کے اس کے سر پر ہلکی سی تھپڑ مارتے بولا، ایسے پیار سے اللہ بچائے۔ وہ نظریں گھماتے بولی تو آگے کا کہکا بے ساختہ چھوٹا۔ اب باہر صاحب پوچھیں گے تو کیا کہوں گی میں؟ اب نیا مسئلہ درپیش آیا تھا۔ کہہ دے کہ کچھ دیر میں اپنی بیٹی سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا، سمپل۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹینشن نہیں لیتے میری جان۔ اسے بازو کے سار میں لیے باہر آیا جہاں سب لوگ اب پیزا پارٹی کر رہے تھے، لیکن وقار کی نظریں انہیں پر تھی۔ اسے اب انتظار تھا کہ کب زینب اکیلی ہو اور وہ اس سے پوچھ سکے۔